बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूल सेल्स का स्ट्रक्चर और उसकी हिस्ट्री को देखा था। तो आज जो है हम अपना लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करेंगे और आज जो है सबसे पहले जिस चीज़ को हम देखेंगे वो है फ्यूल सेल्स टाइप्स टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल। There are so many types of fuel cells commercially available, but they are classified into six major categories, and these categories are based on the type of electrolyte used in the fuel cell. So, in this table, you can see we have given the data: type of fuel cell, type of electrolyte, operating temperature, एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन कि कहाँ पे ये ज़्यादातर इस टाइप के फ्यूल सेल यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी अल्कलाइन फ्यूल सेल्स इन विच अल्कलाइन इज यूज एज electrolyte used in the space ships and transport vehicle like bus, cars, and its operating temperature is 50 to 200 degrees centigrade. The second category of the fuel cell is molten carbonate fuel cell. As the name suggests, molten carbonate used as electrolyte. Operating temperature is 630 to 650 degrees centigrade, and these fuel cells are used in the combined heat and power generation and distributed power generation. So basically, for power generation sector, these fuel cells are used. Next is polymer electrolyte fuel cell. Polymer is used as electrolyte. Operating temperature is 50 to 80 degrees centigrade, and these fuel cells are used in transport, in combined heat and power generation and distributed power generation. Next is direct methanol fuel cell. In this, methanol is used as a electrolyte. 65 to 90 degrees centigrade is the operating temperature, and it is used in the smaller electronics and transport. Smaller electronics mean toys and laptop, mobile, this kind of devices in which these fuel cells are used. Then is the phosphoric acid fuel cells. Phosphoric acid fuel cell operating temperature is 190 to 210 degrees centigrade, and they are also used only in power generation sector, in combined heat and power generation and distributed power generation. The last type is solid oxide fuel cell. Solid oxide used as an electrolyte, and operating temperature is 700 to 1000 degree centigrade. Combined heat and power generation and distributed power generation are the potential applications. Now we will talk about the parameter related to the efficiency of fuel cell. As we already discussed, the fuel cell has very limited voltage level and power level. So if the efficiency of these cells decrease, it will impact largely. So we should try to increase the efficiency of fuel cell as much as possible. Fuel cell operation is influenced by various thermodynamics and electrochemical variables such as temperature, pressure, gas concentration, reactant utilization, current density, and so on, which directly influence the
cell potential and voltage losses. So when you see these parameters, they are in variety and very complex relation between them. Generally, a compromise in the operating parameter is made to meet the required application. It is possible to obtain low system cost and achieve acceptable cell life by operating at optimum operating condition. तो जब इतने ज़्यादा डिवर्सिफाइड किस्म के फैक्टर आप देख रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, गैस कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट यूटिलाइजेशन, इसी तरीके से जो है वो आपका कैटलिस्ट का जो सरफेस एरिया है, कंटेक्ट एरिया है, इस तरह की चीज़ें, तो आप अगर एक पैरामीटर को इम्प्रूव करने लगते हैं तो दूसरा पैरामीटर डाउन होने लग जाता है, या एक पैरामीटर के इंक्रीज करने से अगर एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए तो उसी पैरामीटर के इंक्रीज के इफेक्ट में जो दूसरा पैरामीटर डिस्टर्ब होगा उसकी वजह से एफिशिएंसी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। एट द एंड जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर अचीव हो। तो इसके लिए जो है फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ पैरामीटर्स को एक्सपेरिमेंट करके जो है एक बैलेंस लेवल पे लाया जाता है, ताकि हमारी जो कास्ट है वो भी कम से कम आए और हमें पावर भी जो है वो बेहतर से बेहतर अचीव हो। Operating conditions are optimized by defining specific system requirements such as power requirement level, voltage, current requirement, etc. From this and through life cycle studies, the power, voltage and current requirement of the fuel cell stack and individual cell are determined. तो सबसे पहले बात ये होती है कि आप देखते हैं कि जो आपका लोड है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कितने वोल्टेज चाहिए, कितना करंट चाहिए, कितनी पावर चाहिए, और आप उसी को देखते हुए अपना स्टैक बनाते हैं, यानी कि उन सेल्स को इकट्ठा करके सीरीज और पैरेलल में कम्बिनेशन में आप एक स्टैक बनाते हैं कि वो रिक्वायर्ड पावर, रिक्वायर्ड करंट एंड रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल आपको दे। It is a question of choosing an optimum cell operating point as shown by the figure. तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें तो एक तरफ आपको जो है वाई एक्सिस पे सेल वोल्टेज नज़र आ रहे हैं और वर्सेस करंट डेंसिटी है, और दूसरी तरफ उसी करंट डेंसिटी एक्स एक्सिस के भी पावर डेंसिटी है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जैसे जैसे आप करंट डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज ऑफ द सेल भी इंक्रीज होता जाएगा, जबकि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी करंट डेंसिटी बढ़ती जाती है आपकी पावर डेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो अब आप एक तरफ चाहते हैं कि मैं ज़्यादा करंट और ज़्यादा वोल्टेज अचीव करने की कोशिश करूं, लेकिन दूसरी तरफ जो है आउटपुट पावर जो है वो आपको पर एरिया जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपको एक जो है ऑप्टिमम लेवल पे आके दोनों को जो है वो देखना होता है कि आप का जो है पावर डेंसिटी भी बरकरार रहे और करंट और वोल्टेज भी इंडिविजुअल फ्यूल सेल का बढ़ता जाए। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल को अगर हम देखें तो दो मेजर वे हैं, दो मेजर टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल में, जिनमें से वो एक है यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नंबर 2 है कंट्रोल मेथड। तो लेट्स सी व्हाट दीज टू मेथड रिप्रेजेंट इन इटसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप बताएं कि नैनो टेक्नोलॉजी का ओवरऑल यूज़ कहाँ पे है और इसके क्या बेनिफिट है। ये आप लोग जो है तमाम स्टूडेंट
जो है अपने अपने तौर पे ये बेनिफिट लिख के जो है मुझे मैसेज करेंगे MS टीम पे। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपने कितना लेक्चर सुना है। तो अगर ये आज शाम 10 बजे तक मुझे मिल गए तो ये आपके प्लस काउंट होंगे, अदरवाइज समझा जाएगा कि आपने लेक्चर नहीं सुना और आप अपसेंट काउंट होंगे। तो बेनिफिट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आपने मुझे आज शाम 10 बजे तक बताने हैं। तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे कि यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्यूल सेल एफिशिएंसी। There are many ways and in which nanotechnology help to improve the fuel cell efficiency. Number one way is the fuel cell require the movement of ion through a membrane. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन जो है वो गैस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होती है और वो जो है एक मेम्ब्रेन के ज़रिए पास आउट होके एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जो कि हाइड्रोजन आयन को तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देती है, लेकिन उसको भी बैक फ्लो नहीं करने देती और इसी तरह किसी दूसरे पार्टिकल को भी पास नहीं होने देती या इलेक्ट्रॉन को भी इवन पास नहीं होने देती, हालांकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन से छोटे होते हैं। So let's see how nanotechnology help to in this matter. By using nanopores, we can limit what gets through the membrane and better control the reaction that occur. Researchers have kept the ends of nanopores to trap the acidic solution inside the membrane, thus improving the transport of hydrogen ion through the membrane in low humidity. This capability opens up the possibility of making fuel cells that operate in a wide range of humidity conditions. तो प्रॉब्लम पहले जो हमें एक आता था वो ये था कि लो ह्यूमिडिटी कंडीशन में जो आपकी मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो पानी के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद एसिड होते थे वो उन जो सुराख या होल्स हैं मेम्ब्रेन के उनके ऊपर लो ह्यूमिडिटी कंडीशन में जम जाते थे और हाइड्रोजन आयन का जो पैसेज है उसको मुश्किल कर देते थे। तो नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ के बाद जो मेम्ब्रेन बनी वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट थी और उन्होंने जो है लो ह्यूमिडिटी कंडीशन में भी जो है एसिड वगैरह को अपने अंदर नहीं आने दिया और होल को बंद नहीं होने दिया, जिससे फ्लो ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो इम्प्रूव हुआ और इससे जो है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल बढ़ गई। द अदर थिंग विच नैनो टेक्नोलॉजी हेल्प इन improving the efficiency of fuel cell is the catalyst. Usually platinum made fuel cell reaction at lower temperature occur more easily. Nanotechnology can improve the efficiency of fuel cell by improving the catalyst. Researchers use nanoparticles to increase the surface area available for the reaction, thus making the reaction more efficient and less costly because of less platinum is needed. तो जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि हर केमिकल रिएक्शन को इम्प्रूव करने के लिए या फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। तो ये कैटलिस्ट जो हैं उस रिएक्शन को फास्ट करते हैं। अब जो रिएक्शन यहाँ पे यूज़ होता है बिटवीन हाइड्रोजन गैस टू कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन, उस काम के लिए जो है कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से प्लाटिनम जो है एक सबसे फेमस और सबसे यूजफुल कैटलिस्ट है।
लेकिन प्लैटिनम की कास्ट बहुत ज़्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब आप नॉर्मली प्लैटिनम मेटल को रखेंगे एक स्मूथ सरफेस को, तो उसका जो कंटैक्ट एरिया होगा, ये रिसर्च से साबित हुआ है कि जितनी जो है गैसेस जो हैं वो कंटैक्ट एरिया जितना कंटैक्ट करेंगी प्लैटिनम मेटल से, उतनी ही तेज़ी से वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होंगी और इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगी। तो अगर तो एक स्मूथ एरिया हो, स्मूथ सरफेस हो, तो आप उसको देखें तो उसका जो कंटैक्ट एरिया है और उसकी निस्बत ये जो अगर आप यहाँ पे देखें आपको, तो ये जो क्रिस्टल शेप में सरफेस होगी अप एंड डाउन, तो इसका कंटैक्ट एरिया जो है वो बढ़ जाता है। और इस इंक्रीज इन कंटैक्ट एरिया की वजह से जो है एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाती है। और इस की स्पीड ऑफ रिएक्शन तेज़ होने की वजह से जो पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका करंट है। नेक्स्ट वे इन विच नैनो टेक्नोलॉजी हेल्प is the nanotechnology may produce hydrogen storage tank enough small and lightweight to use in the car। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा होगा कि जो मुख्तलिफ कार में हम CNG यूज़ करते थे, अब भी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पीछे जो है गाड़ी में एक CNG सिलेंडर रखा जाता था। तो ये जो CNG सिलेंडर है इसके अंदर CNG गैस भरी जाती थी। अब जब हाइड्रोजन बेस्ड कार्स और बसेस वगैरह आ रही हैं, तो उसका भी एक वे ये है कि जो है हाइड्रोजन को एज ए कंप्रेस गैस के तौर पर एक सिलेंडर में भर दिया जाए। लेकिन जो हमारा नॉर्मली CNG के लिए जो सिलेंडर होता था, उसकी जो थिकनेस रिक्वायर्ड है वो कम होती थी, लेकिन जो हाइड्रोजन की सेफ्टी के लिए और उसके प्रेशर को डील करने के लिए रिक्वायर्ड है सिलेंडर, उसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस चाहिए ताकि वो हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोड ना हो और उससे कोई धमाका ना हो जाए। तो वो इतना हैवी हो जाता है अगर वो थिकनेस का सिलेंडर बनाया जाए नॉर्मल तरीके से, तो वो हमारी गाड़ी जो है उसके वेट को इतनी आसानी से कैरी नहीं कर सकेगी। और पता चलेगा जितना गाड़ी का वज़न है उससे हाफ वज़न जो है एक छोटे सिलेंडर का है। तो इसलिए जो है वो इतनी फिजिबल नहीं बन रहा था। लेकिन जब नैनो टेक्नोलॉजी आई और उसने मेटल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिफ़ाइन किया और ऐसा मेटल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हुआ कि वो लाइट वेट था, लेकिन वो जो प्रेशर हैंडलिंग थी वो उसको पूरा कर सकता था। एक और चौथा जो है काफ़ी फेमस जो वे है हेल्प करने का, जिससे नैनो टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया, वो भी स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन गैस के सिलसिले में ही है। कि एक मेथड तो ये है कि हाइड्रोजन को प्योर फॉर्म में जो है वो हम स्टोर करें, लेकिन जो दूसरा तरीका है और ख़ास तौर पे अगर बड़े लेवल पे जैसे आपके CNG स्टेशन होते थे, इसी तरह अगर हाइड्रोजन गैस स्टेशन बनेंगे तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा तादाद में हाइड्रोजन गैस स्टोर की जाएगी तो उसके एक्सप्लोजन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पाकिस्तान जैसे इलाके में जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हाइड्रोजन को लंबे अरसे तक स्टोर कैसे किया जाए, तो उसके लिए जो है एक नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक मेथड जो है वो अचीव किया गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड ईजिली to the carbon, so researchers have investigated the storage of hydrogen in the graphene. Because graphene is the only one atom thick, it has the high surface area exposure of carbon per weight of any material.
hydrogen to carbon bonding energy and carbon high surface area exposure make graphene a good candidate for storing hydrogen. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर है ग्राफीन का, और उसके अंदर जो है ये अगर आप ब्लू और रेड देखें तो इस तरह इस एरिया के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड करके स्टोर की जा सकती है। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, मेजर मेथड की तरफ। पहले हमने नैनो टेक्नोलॉजी को देखा कि वो 4-5 डिफरेंट वे में हेल्प कर रही है फ्यूल सेल की एफिशिएंसी की इम्प्रूवमेंट और इस टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट में। तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि जो कंट्रोल मेथड है, हाउ इट हेल्प टू increase the efficiency of a single fuel cell. The voltage of the fuel cell decreases as the current increases. ये तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी सोर्स में अगर आप करंट अचानक इंक्रीज कर देंगे तो उसका जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। In order to maximize the efficiency of the fuel cell, the current of the fuel cell must be controlled in order to make the voltage constant. तो अगर ये इस तरीके से वोल्टेज किसी भी फ्यूल सेल का डिस्टर्ब होगा, वेरिएट होगा, तो उससे जो है फ्यूल सेल की वर्किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये रिसर्च से साबित हुआ है कि हमें फ्यूल सेल का आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। तो इस कांस्टेंट रखने के लिए जो है हम जो टेक्निक या पूरा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए 3-स्टेज कन्वर्टर। 3-स्टेज कन्वर्टर इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल। अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें तो एक फ्यूल सेल गिवन है, उसके आगे आपको डीसी टू डीसी कन्वर्टर नज़र आ रहा है, फिर आपको एक इन्वर्टर नज़र आ रहा है और एक नीचे बाई डायरेक्शनल डीसी टू डीसी कन्वर्टर नज़र आ रहा है। तो ये 3 इन्वर्टर कन्वर्टर यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हम इसको 3-स्टेज कन्वर्टर कहते हैं। इसकी डिटेल आगे हम आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये जो यहाँ पे मौजूद है, इज़ द मेन कंपोनेंट। Its main purpose is to regulate the current drawn from the fuel cell regardless of the load condition. तो इसका काम ये है कि आपका लोड बढ़े, आपका लोड कम हो, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है फ्यूल सेल का जो आउटपुट वोल्टेज है उसे कांस्टेंट रखेगा और उस इफेक्ट को जो है वो नलीफाई करेगा। This will lead to a fluctuated voltage on the DC bus depending on the condition. तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा, लेकिन ये जो आउटपुट पे है DC टू DC कन्वर्टर के, वो वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा ड्यू टू द लोड। और ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो DC बस को दे रहा है, इसलिए फ्लक्चुएशन जो है मेनली वो इस बस पे रहेगी। अब देखते हैं कि ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर कैसे काम करता है। द आउटपुट ऑफ डीसी वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनपुट डीसी वोल्टेज। ये जो फर्स्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, इसकी हमेशा जो है ये बूस्ट कन्वर्टर है और हमेशा इसकी आउटपुट जो है वो इनपुट के मुकाबले में ज़्यादा होगी। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 सेमीकंडक्टर स्विचेस, a transistor and a diode and 2 energy storage element, inductor and capacitor। तो अगर हम देखें इसका एक सर्किट बनाएं, इक्विवेलेंट सर्किट, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि 2 जो है इसके अंदर स्विच यूज़ हो रहे हैं। एक डायोड है, ये इधर है, और ये डायोड है, और एक ये ट्रांजिस्टर है और ये डायोड है, और 2 स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये इंडक्टर और एक कैपेसिटर। इनिशियली एनर्जी इज स्टोर इन द इंडक्टर व्हेन स्विच
1 इज टर्न ऑफ, यानी अगर हम यहाँ पे देखें इस सर्किट में हम स्विच 1 को टर्न ऑन कर दें तो आप ये देखेंगे कि जो सोर्स से करंट आएगा वो सबसे पहले इस इंडक्टर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। From the electrical characteristic of the inductor, the current ramp up linearly according to the equation. अगर स्टोर हो रहा है तो वो जो है इस इक्वेशन के ज़रिए डिफाइन किया जाता है कि V in is equal to L1 into DIL/dt। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये करंट ऐसा ऐसा जो वोल्टेज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसी तरीके से करंट जो है वो डिपेंड करेगा IL इज इक्वल टू VIN/L/T। इस तरीके से करंट ऐसा ऐसा इंक्रीज होगा। द पीक करंट where D is the duty cycle and T is the period for the pulse width modulation will be I peak is equal to VI/L into DT, यानी कि T जो है इसकी जगह ड्यूटी साइकिल इनटू द टाइम पीरियड जो कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में यूज होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आई पीक की करंट के अचीव होता है इस तरीके से। द करंट इन एन इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली when switch 1 is switched off. The current in inductor continue to flow through D1 to the storage capacitor C1। तो जब हम ये स्विच 1 ऑफ कर देंगे तो उस सूरत में जो है ये करंट जो इंडक्टर के अंदर था वो डायोड के थ्रू फ्लो करना शुरू कर देगा और वो जो है कैपेसिटर में जाके स्टोर होना शुरू हो जाएगा। Thus the current in the inductor decrease linearly in the time from the peak current। तो जैसे ही पीक करंट पे पहुंचा उस वक्त स्विच 1 जो है वो कट ऑफ हुआ और डायोड के थ्रू करंट जो है वो C1 की तरफ फ्लो किया और उधर जो है एनर्जी स्टोर होना शुरू हो गई, और ये जो इंडक्टर के अंदर स्टोरेज के बाद जो है करंट की पीक वैल्यू आ चुकी थी वो अब ऐसा ऐसा स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो जब इस सिचुएशन को हम देखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी DIL/dt इज इक्वल टू VIN माइनस VOUT/L1। और यहाँ से अगर हम IL की वैल्यू निकालें तो VIN माइनस VOUT/L मल्टीप्लाई बाई T प्लस IP। During this linear decrease in current, the energy stored in the inductor is transferred to the capacitor. The result in a simple relationship between the input and the output voltage as shown in the equation above. अब हम जब देखते हैं कि DC to DC कन्वर्टर का तो ये इस तरीके से फंक्शन है, वर्किंग है, तो उसके बाद हम देखेंगे बाई डायरेक्शनल DC टू DC कन्वर्टर जो है उसका क्या रोल है, वो कैसे काम करता है। इट इज़ यूज्ड टू कीप द वोल्टेज ऑन द DC बस बिटवीन टू इम्पोज्ड लिमिट। यानी कि जैसे हम पहले कह चुके हैं कि DC बस जो है जो यहाँ पे मौजूद है ये लोड की वजह से इसके ऊपर वोल्टेज लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करेंगे। तो लेकिन इन फ्लक्चुएशन की भी एक लिमिट हमने रखनी है ताकि हमारे लोड के ऊपर भी कोई ज़्यादा असर ना पड़े। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपका वोल्टेज लेवल डाउन हो जाए या बहुत ज़्यादा अप हो जाए। तो हमने अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ DC बस वोल्टेज लेवल रखनी होती है। तो when the voltage increase, the converter uses the extra energy generated by the fuel cell to charge an auxiliary battery। अगर आपका लोड कम है और पीछे से DC टू DC कन्वर्टर एम्पलीफाई करके वोल्टेज दे रहा है और आगे लोड इतना नहीं है तो आपका DC बस पे जो है वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा। तो एक सर्टेन लिमिट से अगर ये वोल्टेज बढ़ेगा तो वो भी डेंजरस है
इसलिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज और एक्स्ट्रा पावर है उसको हम बाई डायरेक्शनल डीसी टू डीसी कन्वर्टर के ज़रिए ये बैटरी में स्टोर करते जाते हैं। On the contrary, if the load increases, the first DC to DC converter will not be able to keep up the leading to the voltage drop on the DC bus. अगर आपका लोड अचानक बढ़ जाता है किसी वक्त तो अल्टीमेटली वो जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है वो किसी हद तक कंपनसेट करने की कोशिश करेगा इनिशियली, लेकिन एक छोटी लिमिट के बाद जो है वो इस काबिल नहीं होगा कि इस वोल्टेज ड्रॉप को वो कंपनसेट कर सके। तो उस सूरत में ये ही जो हमने बैटरी के अंदर स्टोर करके रखी हुई थी एनर्जी, वो बाई डायरेक्शनल डीसी टू डीसी कन्वर्टर के ज़रिए जो है वो इस डीसी बस के वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करेगी। अब हम आते हैं इन्वर्टर की तरफ। ये जो डीसी बस से आगे और लोड से पहले जो है हमने एक इन्वर्टर लगाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोड आपके एसी लोड होते हैं, तो अल्टीमेटली आपको डीसी से एसी में कन्वर्ट करके देना है, इसलिए इन्वर्टर यूज होता है। द इन्वर्टर विल कन्वर्ट द डीसी एनर्जी फ्रॉम द बस टू वट एवर फॉर्म ऑफ करंट इज नीडेड बाई द लोड। आपके लोड को जिस तरह की जिस शेप की वेव फॉर्म के साथ जो है वो चाहिए, वो आप इस इन्वर्टर के ज़रिए कर सकते हैं। नॉर्मली साइन वेव होती है, लेकिन अगर आपका लोड इस टाइप का है जो स्क्वायर वेव उसको चाहिए या चॉप्ड डीसी चाहिए, तो आप इस इन्वर्टर की मदद से उस तरह की आउटपुट दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्यूल सेल का कि जिस टाइप का लोड हो वो उसको जिस फॉर्म का करंट चाहिए, जिस शेप ऑफ वेव का चाहिए, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी पे चाहिए फ्रीक्वेंसी भी मॉड्यूलेट की जा सकती है। इट मस्ट ऑपरेट करेक्टली विद ऑल फ्लक्चुएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज अगर इसमें थोड़ी फ्लक्चुएट भी कर रहा है, अगर कंपनसेट नहीं कर पा रहा बाई डायरेक्शनल डीसी टू डीसी कन्वर्टर, तो आपके इन्वर्टर में इतना दम होना चाहिए कि वो उसको प्रॉपर कंपनसेट करके और सेट करके दे। अब इस सारे सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो एक सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल मेथड कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल कौन करेगा? अल्टीमेटली आप सब जानते हैं कि कंट्रोल कौन करता होता है, उसको हम कंट्रोलर कहते हैं, ये माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। पीएलसीज भी होते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, वो भी यूज़ हो सकते हैं। तो कोई भी कंट्रोलर यूज़ करके इस पूरे सिस्टम को ऑटोमाइज किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज का जो दूसरा सवाल है जिसका जवाब आप मुझे इनबॉक्स करेंगे वो ये होगा कि कौन कौन से कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल हैं इस काम के लिए। तो ये आपका जो है आंसर काउंट होगा कि आपने ये लेक्चर अटेंड किया है, अदरवाइज जो है आप एब्सेंट मार्क होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोलर। The controller is designed to accomplish the following tasks: maintain the current drawn from the fuel cell at constant value to use the cell at maximum efficiency। जैसा कि हमने कहा कि उसमें वोल्टेज एंड करंट जो ड्रा हो रहे हैं फ्यूल सेल से उसको कांस्टेंट रखना है, तो कंट्रोलर जो है इस बात को मेक श्योर करता है और हर वक्त चेक कर रहा होता है इनपुट वैल्यूज़ के ज़रिए कि करंट और वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं। नंबर 2 है डिटेक्ट ऑन द फ्लाई द मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ द फ्यूल सेल। तो वोल्टेज वर्सेस करंट जो है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का जो मेथड होता है, जो कि सोलर सेल में भी यूज़ होता है, वो इसी तरह फ्यूल सेल में भी यूज़ हो रहा होता है कि वोल्टेज वर्सेस करंट जो है वो मैक्सिमम पावर कहाँ पे डिटेक्ट होती है, ताकि उतना वोल्टेज और करंट वो
लेवल बरकरार रखे। तीसरा काम जो है उसका, रेगुलेट द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड वाटर इन एंड आउट ऑफ द फ्यूल सेल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो इन हो रही होती हैं और वाटर जो आउट हो रहा होता है फ्यूल सेल में, उसको वो चेक करता है कि वो प्रॉपरली फ्लो कर रही हैं कि नहीं। अगर उसमें कोई ब्रेकेज आएगा, कोई हर्डल आएगी, तो अल्टीमेटली जो है फ्यूल सेल की वर्किंग इफेक्ट होगी और इससे फ्यूल सेल के डैमेज होने का भी खतरा होता है। इसलिए इसको भी मॉनिटर कंट्रोलर करता है। मॉनिटर द वैल्यू ऑफ डीसी बस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द चार्ज डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी। तो बस के ऊपर जैसे हमने कहा कि अगर वोल्टेज एक सर्टन लेवल से ड्रॉप होंगे तो बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर जो है वो कंपनसेट करेगा उसको, और अगर एक्सीड करेंगे तो वो उसको बैटरी में स्टोर करेगा। तो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए भी कंट्रोलर जो है वो चेक करता रहता है कि आया बस की वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा सर्टन लेवल से हुई है, तो फिर क्या बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर जो है फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट है डिटेक्ट द पावर डिमांड ऑफ द लोड एंड ड्राइव अकॉर्डिंगली। तो जो लोड या मोटर यहाँ पे इस सर्किट में शो की गई है एज ए लोड, उसकी जो है पावर डिमांड कितनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी कंट्रोलर